हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयंस एंड रेडिकल. दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट चैप्टर ओनली. तो फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा अगला टॉपिक है आयंस एंड रेडिकल्स. वी हैव स्टडीड अबाउट आयंस इन द लास्ट लेक्चर. वी आयन क्या है? वी हैव स्टडीड वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ डू दे फॉर्म ions, how do they attain stability by donating or accepting electrons. For example, let's take an example of sodium. Sodium has an electronic configuration 2A1. To attain stability, it donates one electron and gets converted into Na1 plus. Magnesium, it has an electronic configuration 2A2. To attain stability, it donates 2 electrons and get converted into Mg2 plus. These species which are formed by donation or acception of electrons are called as ion. The positive ions are also called as cation. So Na1 plus can be called as sodium cation, Mg2 plus can also be called as magnesium cation, and negative species are called as anions. For example, let's take example of chlorine. Chlorine has electronic configuration 287. It has atomic number 17. Therefore, its electronic configuration is 287. To attain stability, it accepts one electron. ये एक electron को accept करता है. And on acception of one electron, chlorine becomes Cl1 minus. This is called as chloride ion or chlorine ion. And this chlorine ion, the valency of chlorine ion is -1. And it is also called as chlorine anion. The negative ions or negative radicals are called as anion. The positive radicals are called as cation. Na1 plus is a sodium cation and Cl minus is a chloride or chlorine anion. When some species donate 2 electrons, for example oxygen, it has electronic configuration 2,6. To attain stability, it accepts 2 electrons and forms O2 minus anion. Such species are called as anions or negative radicals. So negative ions. So we have studied ions, and you can form ions of you can study how the ions of various elements, for example first 20 elements, you can easily find how first 20 elements form ions. For example, let's take an example of lithium. Lithium has electron configuration 2,1. Obviously it attains stability by donating one electron. Therefore lithium ion, the formula for lithium ion is Li1 plus. In this way there are many ions and many of them are given to you in the PDF given to you. Therefore you have to by heart the radicals or the formula and as well as the valency of the various radicals. I just give you an example how you have to remember. Suppose I said sodium ion. So I have to remember Na1 plus. सोडियम आयन के साथ मुझे याद रखना पड़ेगा Na1 plus. अगर मैंने कहा क्लोरीन, अगर मैंने कहा क्लोरीन आयन, तो I have to remember Cl1 minus. I have to remember the symbol as well as the valency. This will be very useful in our next section. But before that, if you see the table which is given to you, you will find many different ions. आपको बहुत अलग अलग तरह के ions दिखाई देंगे और उनका formation कैसे हुआ है वो study करना हमारे लिए जरूरी है. Such different ions are called as radicals. Now we are going to study radicals. ये radicals बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. या फिर in this part we are going to study polyatomic radicals. अभी तक हमने जो radicals या अभी तक जो हमने आयन स्टडी किए थे वो सारे मोनोएटॉमिक आयन्स थे. जैसे क्लोरीन आयन वाज Cl1 माइनस. ये कैसे फॉर्म हुआ ये भी हमें पता है कि Cl1 माइनस कैसे फॉर्म हुआ है. क्लोरीन ऑन एक्सेप्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cl1 माइनस Na1 प्लस. सोडियम ऑन डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म Na1 प्लस. और अगर और कुछ एग्जांपल लेंगे तो Mg2 प्लस या Ca2 प्लस. ये कैसे बना है? कैल्शियम के एक एटम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए. On donation of 2 electrons, Ca2 plus is formed.
Mg2+ कैसे फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम का जो एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, और डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mg2+ ions. So in this way मोनोएटॉमिक आयंस whether they are नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से ये फॉर्म होते हैं. लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन, अगर मैंने कहा OH- या मैंने कहा NH4+, NH4 1+, या OH1-, या अगर मैंने कहा SO4 2-, ये आयंस किस तरह से फॉर्म होते हैं? अभी दीज आयंस कंटेन मोर देन वन एटम. इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है. यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ these polyatomic radicals, and there are many polyatomic radicals. Carbonate radical, which is CO3 2-, bicarbonate radical, which is HCO3 2-. तो ये सारे रेडिकल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये हम लोग इस पार्ट में स्टडी करने जा रहे हैं. तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ OH- आयन. OH- आयन किस तरह से फॉर्म होता है ये स्टडी करेंगे हम लोग. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. वी नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. Water contains central oxygen atom which contains 8 protons. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, and there are 6 electrons in the second orbit. And to attain stability, this oxygen shares 2 electrons with 2 hydrogen atoms. 2 हाइड्रोजन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन दिस वे अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. अभी हमें देखना है ये OH- रेडिकल किस तरह से फॉर्म होता है. उसके बाद में हम लोग पॉजिटिव रेडिकल्स भी किस तरह से फॉर्म होते हैं वो भी देखेंगे. लेकिन इसके पहले देखते हैं ये नेगेटिव रेडिकल किस तरह से फॉर्म होता है. अभी ये वाटर के ओवरऑल, दिस इज वाटर, इट्स फॉर्मूला इज H2O. इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? इट कंटेन्स, ऑक्सीजन कंटेन्स 8 प्रोटॉन्स और 2 हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन्स. तो ऑन टोटल इट कंटेन्स 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 प्रोटॉन्स. और अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर ओवरऑल दिस वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. लेकिन अगर मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, इफ सपोज दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, लेकिन ये हाइड्रोजन हटते वक्त ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर ऑक्सीजन ने रख लिया, देखिए ये किस तरह से होता है. दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बट दिस हाइड्रोजन लूजेस इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया और वो बेचारा अलग हो गया. तो दिस इज अ हाइड्रोजन बट इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. उसने जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन ने अपने पास ही रख लिया. और अभी ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं H+ कहूंगा. क्यों H+ कहूंगा? बिकॉज इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. बस इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया. देयरफॉर दिस इज H+. और इसे हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं या इसे H+ या हाइड्रोजन रेडिकल, H+ रेडिकल या H+ आयन भी कह सकते हैं. लेकिन on losing this H+ ion, ये बचा क्या है? Now this is not H2O, obviously it contains an oxygen and a hydrogen, O और H. लेकिन इसको अगर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे तो it contains 8 and 1, total 9 protons, and the number of electrons अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this electron which is captured from this hydrogen which was previously attached to the atom. So therefore this contains 9 protons and the number of electrons becomes 10. Therefore overall charge on this OH part is 1-. Therefore in this way this OH- or negative radical is formed. So this is one example. Let's take another example to study some more polyatomic radicals. Now let's take an example of NH4+. This OH- radical which we have already studied is also called as
हाइड्रोक्सिल radical. ठीक है, this is also called as hydroxyl radical. Now we are also going to study NH4 plus. We have already studied how the negative radical is formed. Now we are going to study how the पॉजिटिव रेडिकल इज फॉर्म. पॉजिटिव रेडिकल किस तरह से फॉर्म होता है ये अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. लेकिन इसका जो बेस कंपाउंड है NH4 प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमोनियम रेडिकल. लेकिन ये अमोनियम रेडिकल किस तरह से फॉर्म होता है ये अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. लेकिन अमोनियम रेडिकल का बेस है अमोनिया NH3. ये NH3 किस तरह से फॉर्म होता है. फर्स्ट वी विल स्टडी हाउ द NH3 इज फॉर्म एंड देन वी विल गो ऑन टू स्टडी हाउ NH4 प्लस इज फॉर्म. तो उसके पहले हम लोग देखते हैं, पहले तो नाइट्रोजन ड्रॉ करते हैं. नाइट्रोजन एज वी ऑल नो नाइट्रोजन कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स. तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 और 5. टू अटेन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. टू अटेन स्टेबिलिटी इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स. जिस तरह से वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसको 3 की जरूरत है. देयरफॉर इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स. तो शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह से ये अमोनिया फॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला है NH3. इन दिस वे दिस NH3 और अमोनिया इज फॉर्म. तो ये अमोनिया है, लेकिन ये अमोनिया तो ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली इट हैज 7 8 9 एंड 10 पॉजिटिव चार्जेस 10 प्रोटॉन्स. एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर ओवरऑल द चार्ज ऑन दिस अमोनिया NH3 इज न्यूट्रल. लेकिन जो प्रीवियस केस में एक हम लोग ने H प्लस आयन देखा था, ये एक हाइड्रोजन था जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था. ये H प्लस है. अब ये H प्लस बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज इट हैज लॉस्ट प्रीवियसली, इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन प्रीवियसली. तो ये ऐसा हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, दिस हाइड्रोजन अटैक्स दिस लोन पेयर, ये पेयर के ऊपर अटैक करता है और यहां पे आके ये अटैच हो जाता है. ये किस तरह से अटैच होता है, अभी इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये क्या करता है, इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक तो ले लेता है और एक को शेयर कर लेता है. इस तरह से ये यहाँ पे अटैच हो जाता है. अभी ये तो अटैच हो गया, तो ये जो NH3 था दिस विल नाउ नॉट रिमेन NH3, इट विल बिकम NH4. लेकिन NH4 हो गया, देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक है और 4 हाइड्रोजन मिला के ये हो गया NH4. लेकिन इसको अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 7 8 9 10 और 11 प्रोटॉन्स. देयर आर 11 पॉजिटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर ओवरऑल चार्ज ऑन दिस एटम ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 1 प्लस. एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इन दिस वे दिस NH4 1 प्लस इज फॉर्म. तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग रेडिकल्स है वो फॉर्म होते हैं. जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी हैव सल्फेट रेडिकल. अगर याद करेंगे तो अगर टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली देखेंगे तो विल फाइंड दैट सल्फेट रेडिकल हैज अ फार्मूला SO4 2-. सल्फेट रेडिकल का फार्मूला है SO4 2-. अब ये SO4 2- कहां से आया, तो ओरिजिनली एक कंपाउंड था विच वाज H2SO4. अभी जैसे OH- में हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, उस तरह से अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन अगर हम लोग ने रिमूव कर ली, लीविंग बैक द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर शेयर्ड बाय इट. 2 हाइड्रोजन ने बेचारे ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, लेकिन हाइड्रोजन को निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए. तो क्या होगा कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन विद इट एंड दे विल फॉर्म 2- चार्ज. इस तरह से H2SO4 से बनेगा SO4 2-. अगर और एक रेडिकल देखेंगे जिसका नाम है बायसल्फेट रेडिकल, इसका फॉर्मूला है HSO4 1-. अब ये भी इसी तरह से बनता है, H2SO4 है. इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर ओवरऑल चार्ज ऑन दिस रेडिकल और ऑन दिस मॉलिक्यूल बिकम्स 1-. इस तरह से इन दिस वे दीज रेडिकल्स आर फॉर्म. तो हम लोग ने अभी देखा इस पार्ट में कि किस तरह से रेडिकल्स है वो फॉर्म होते हैं. ठीक है, अभी तो हम लोग ने देखा है कि किस तरह से रेडिकल फॉर्म होते हैं. अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे एक्सरसाइज में हम लोग को दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द
कंपाउंड्स। तो अभी इस पार्ट में अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हमें टेबल दिया है उस पूरे के पूरे टेबल को हमें याद करना है। वी हैव टू बाय हार्ट द एंटायर टेबल। जो भी पूरा टेबल हमें दिया है वो सारा का सारा टेबल हमें अभी बाय हार्ट करना है। टेक 2 days, शायद 1-2 दिन लीजिए, और 2 दिन में उस पूरे टेबल को बाय हार्ट करना है। मतलब हमें सभी रेडिकल्स के नाम भी याद करने हैं, एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल। जैसे हमें याद रखना है, जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम। अगर पोटेशियम कहा तो मुझे ये पूरा याद होना चाहिए, पोटेशियम मतलब K और उसका वैलेंसी है 1+। अगर मैंने कहा सल्फेट, तो सल्फेट के साथ मुझे SO4 और साथ में उसका वैलेंसी 2-, ये पूरा याद होना चाहिए। अगर मैंने कहा बाइकार्बोनेट, तो इसके साथ मुझे HCO3 और साथ में उसका वैलेंसी 1-, ये मुझे याद रहना चाहिए। अगर मैंने कहा सल्फाइड, तो मुझे याद रहना चाहिए इसका सिंबल है S और वैलेंसी है 2-। तो इसी तरह से सारे, जैसे मैंने कहा ब्रोमाइड, तो मुझे इसके साथ Br उसका सिंबल और वैलेंसी है 1-। इस तरह से मुझे ये पूरा का पूरा टेबल जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। सारे के सारे रेडिकल याद करना, बाय हार्टिंग ऑल द रेडिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ टू यूज इट, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू यूज द नॉलेज ऑफ द रेडिकल्स। ये जो रेडिकल्स मैंने याद किया उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो पहला एक क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैंने कहा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट। तो ये पार्ट हम लोग ने आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में भी पहले स्टडी किया हुआ है। तो सोडियम नाइट्रेट मैंने पढ़ने के बाद सबसे पहले मुझे देखना होगा सोडियम लिखा है, तो सोडियम देखते ही मुझे सोडियम का रेडिकल के बारे में याद आना चाहिए। सोडियम का रेडिकल है Na1+। तो ये जो 1+ है ये मुझे ऊपर नहीं लिखना है, उसे मुझे नीचे लिखना है। उसके आगे है नाइट्रेट। अगर हम लोग टेबल में ठीक से देखेंगे तो नाइट्रेट है NO3 और वैलेंसी है उसका 1-। ये एक्चुअली ऊपर ऐसा लिखा होता है 1-, तो मुझे ऊपर नहीं लिखना है, आई हैव टू राइट इट डाउन। उसके बाद में बहुत आसान काम है, आई जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1- या फिर 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद Na। नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ नंबर्स को याद रखना है। 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद Na and this one will get multiplied with NO3 and the formula for sodium nitrate becomes NaNO3। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को देखेंगे तो कैल्शियम देखने पर मुझे याद आना चाहिए कैल्शियम का फॉर्मूला विच इज Ca, इसके साथ में वैलेंसी है 2+। तो ये ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और नाइट्रेट NO3 वैलेंसी है 1-। अभी ये this one will get multiplied with Ca and this 2 will get multiplied with entire NO3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Ca और NO3 को एंटायर में ये ब्रैकेट करके 2। ये ब्रैकेट करके 2 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द एंटायर रेडिकल NO3। ये NO अलग नहीं है, सॉरी NO एक नहीं है। N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये रेडिकल बना है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरे रेडिकल को 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है NO3 ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन यू हैव टू बाय हार्ट द रेडिकल्स। और एक थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, जो है सपोज आई एम राइटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का वैलेंसी है 2+ और कार्बोनेट CO3 2-। अभी अगर दोनों का वैलेंसी अगर सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों 1 हो जाएंगे। 1 into Ca and 1 into CO3। CaCO3 इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज भी लिख पाएंगे। और एक दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन है राइट नेम फ्रॉम फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला दिया होगा एंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला हमें नाम लिखना है। ये तो और भी आसान काम है। जैसे अगर मुझे दिया है KCO3, तो इसमें इसको थोड़ा प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड CO3
स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। तो ये अगर मुझे रेडिकल्स याद है तो ये ऑटोमेटिकली हम ये काम कर पाएंगे। तो अगर हमें रेडिकल्स का नॉलेज है तो हम किसी भी कंपाउंड के नेम को लिख पाएंगे आराम से। तो ये काम बहुत आसान है। लेकिन इसके साथ और एक पार्ट जुड़ा हुआ है, वो है वेरिएबल वैलेंसी। ये वेरिएबल वैलेंसी वाला पार्ट है, ये हम लोग ने अभी तक कवर नहीं किया। अभी वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है? सर्टन मेटल्स, जनरली ये मेटल्स ही है, एंड सर्टन मेटल्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे तब हम उसे देखेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स है, सर्टन मेटल्स है, उसके एग्जांपल में लिखता हूं आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, ऐसे कुछ पर्टिकुलर मेटल्स है, लीड है उसमें और एक, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर मेटल्स है। ये मेटल्स, दीज मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी, मतलब उनका एक वैलेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल सोडियम हैज अ सिंगल वैलेंसी, सोडियम ऑलवेज हैज वैलेंसी 1+, मैग्नीशियम ऑलवेज है वैलेंसी 2+, कैल्शियम ऑलवेज है वैलेंसी 2+। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड रहता है। लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंसी चेंज होते रहता है। समटाइम्स दे शो डिफरेंट वैलेंसी एंड समटाइम्स दे शो अनदर वैलेंसी। जैसे आयरन शोज टू वैलेंसीज Fe2+ एंड Fe3+। कॉपर शोज टू वैलेंसी Cu1+ एंड Cu2+। तो इस तरह से जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, सच मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटल्स विद हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। अभी वेरिएबल वैलेंसीज के नाम कैसे रखने हैं? जैसे Fe2+ को हम लोग कहते हैं फेरस और Fe3+ को कहते हैं फेरिक, Cu1+ को कहते हैं क्यूप्रस एंड Cu2+ को कहते हैं क्यूप्रिक। तो एक जनरल आइडिया ये है कि अगर कोई भी मेटल दो वैलेंसी शो करता है तो उसमें से जो छोटी वाली वैलेंसी है उसे OUS ये सफिक्स लगता है, और जो बड़ी वाली वैलेंसी है, द लार्जर वैलेंसी विल गेट IC एज अ सफिक्स। तो छोटी वाली वैलेंसी जो आयरन में 2 है तो उसे सफिक्स लगता है फेरस, और उसमें ही बड़ी वाली वैलेंसी जो 3+ है तो वहां पे फेरिक बन जाता है। उसी इन द सेम वे कॉपर में छोटी वैलेंसी है 1+, तो उसका कॉपर का 1+ का रेडिकल है जिसे कहते हैं क्यूप्रस, और कॉपर का 2+ वाला रेडिकल है उसे कहते हैं क्यूप्रिक। तो अभी इस चैप्टर में लगभग सारे के सारे पार्ट्स जो हमें दिए गए हैं वो सारे हम लोग ने कवर कर लिए हैं। अभी एक एक्सरसाइज है जो तुम्हें जो नोट्स दिए हैं स्कूल ने उसमें सबसे आखिर में दिया गया है, एंड यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। लेकिन ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यू हैव 2 days, आज का दिन है और कल का पूरा दिन है, ये दो दिनों में यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द रेडिकल्स विद वैलेंसीज, ऑल द रेडिकल्स विद वैलेंसीज। उनको सारे के सारे रेडिकल्स उनके वैलेंसीज के साथ याद करने हैं। और आई विल कंडक्ट अ टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा जिसमें सभी के सभी रेडिकल्स और वैलेंसीज के बारे में ये टेस्ट होगा, एंड आई विल ट्राई टू कंडक्ट ओरल टेस्ट और आई विल गिव यू अ रिटन टेस्ट। तो ये हमें परसों देना होगा। थैंक यू।